She is from Jodhpur, Rajasthan, and presently she is teaching as a guest faculty in PG College. So yes, sir. Okay. Thank you so much, sir. Okay, so Dr. Manju, I welcome you to this session, and I tell you that we have various students, almost 100 students. I Okay, can see, sir. we are going to have almost 100 students who are preparing for UPHESC Assistant Professor exam, which is probably scheduled to be held in December. Okay. So I want that at least all of them should get a bit of ignition from you, from your success. So first of all, I'll congratulate you for your wonderful achievement. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's so kind of you. Okay, so the first thing I would request you to give your introduction, also about your family backgrounds. Yes, sir. About what are the struggles that you faced during this journey. Yes, sir. Please. So as sir introduced me, I'm Dr. Manju Bishnoi. I did my schooling from Pune, Kendriya Vidyalaya, KVs, because my father was in Air Force. So we used to shift from one place to another. And then after I shifted to Jodhpur, I got married actually just after 12th. I was a science student and I had to change my subject. And after 2 years gap, I started my graduation. So I did my graduation from Jain Narayan Vyas University, Jodhpur, and also the post graduation. And then in 2013, as I was registered in PhD program, so I completed my PhD in 2018, but I was awarded PhD in 2019. And in 2019 itself, I cleared NET exam, and then I started preparing for this RPSC. And after giving this mains exam of RPSC, I was appointed as a guest faculty in Government College Bilada. So right now I'm working as a guest faculty under Vidya Sambal scheme. And yes, and as you all know, this journey has been very difficult because we know that each and every competition and is somewhere needs your dedication, hard work. So I was on this journey, and it was very difficult for me in starting because sir मुझे ऐसा लगता था कि बहुत एज हो गई है काफी टाइम हो गया है and I felt if I couldn't clear this time, then me and my son, they are going to study, मतलब एक साथ स्टडी करने वाले हैं सेम, क्योंकि my son he is in 10th standard and I have a young daughter, she is in 7th standard. So and obviously यहाँ पर family का बहुत important role रहा, so they played a great role in throughout this journey. And I would give credit to my teachers also because they kept me pushing, they kept motivating me. So हाँ ठीक है, एक जर्नी कंप्लीट हुई है और दूसरी सर स्टार्ट हुई है. So yes, that's all about my life, that's all about my what do you say, जो भी मेरी जर्नी थी. आपने कहा कि you got married just after 12. Yes, sir. Actually, we belong to this community, so we had this problem. Actually, now the things have been changed a lot, but बहुत पहले टाइम में ऐसा था, थोड़ा प्रॉब्लम था कि जल्दी शादी करवा दी जाती थी. So although my parents they resisted a lot, but ठीक है, थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर था. But my in-laws they were cooperating, they are still cooperating. They are very cooperative actually. So with their help and उनकी मदद से मैं कंटिन्यू करती रही. हालांकि बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन ये था कि सपना मैंने अपने आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया. क्या बात है, super. I can see some changes in your academics. In your matriculation, you were very super student with 76%. In intermediate, yes, again 74%. But after marriage, that percentage went down somewhere 58%. In PG 55%. तो कहीं ना कहीं वो असर दिख रहा है. सर एक्चुअली यस सर, वो था क्योंकि
being a mother of children, living in a joint family, और एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, घर का काम, फिर थोड़ा सा कॉलेज का काम, and in fact I was a private student in my post graduation, so maybe कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहा था एडजस्ट करना, और स्टडीज को कंटिन्यू किया गया, बट उसको बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना थोड़ा मुश्किल था। बट एनी हाउ मैंने उनको कभी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल डिनाई किया और हटने दिया अपने लाइफ से। वो सपना थोड़ा धीरे धीरे, कभी कभार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, लेकिन मैंने उसे कहा ना सर, मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया उसे। एंड when my children they are old enough now, they are old enough to take care of themselves, so अब मुझे लगा कि ठीक है, अब वो सब कुछ अपना ध्यान रख सकते हैं। I fulfilled my all responsibilities, so फिर मैंने अपना, जो मैंने कहा कि जो मेरा है पढ़ाई में डेडिकेशन है, जो मेरा सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, मैं उसे पूरा करना चाहती थी, और उसी के लिए मैंने फिर आरपीएससी, जैसे ही आरपीएससी का ये नोटिफिकेशन निकला, आई होल हार्टेडली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ग्रेट, मतलब आपने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं? 2000 में जब मैट्रिकुलेशन किया यस, तब से लेकर ये आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, वेरी रेगुलर। मैं, लोग कहते थे तुम इतने साल तक पढ़ाई को लेके कैसे बैठी रही? just maybe I was passionate. I am still very much passionate about these books. So लोग कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी बुक्स छूट जाएंगी, तुम सिलेक्ट हो गई हो। मैंने कहा नहीं, जिस जॉब में हूँ बुक्स के साथ तो मेरा लाइफ लॉन्ग साथ है। सो बुक्स में छोड़ना भी नहीं चाहती, एंड लिटरेचर इज ऑल अबाउट दैट कि आप सीखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, और राइट सर। सो अभी तो जर्नी की शुरुआत है बुक्स के साथ। अभी तो जर्नी की शुरुआत है, राइट सर, एग्जैक्टली। Yes, very right. And after marriage, you started your PhD somewhere in 2011 or 12. Yes, I gave this MPET exam in 2011, and I got my registration in 2013. So उसके साथ फिर थोड़ा धीरे हो गया, slow, because I couldn't get any. I wasn't had any job. कहीं पे भी मैं साइड में पीएचडी के साथ, आई वाजंट गिविंग एनी गेस्ट लेक्चर, और कुछ भी मैं ऐसा नहीं दे रही थी, मैं कहीं पे भी एज अ गेस्ट लेक्चरर नहीं जा रही थी, बिकॉज आई थॉट कि डूइंग दिस हाउस होल्ड चोर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस थिंग, प्रिपरेशन करना, पीएचडी के चैप्टर्स तैयार करना, सो इतना ही मैं बैलेंस कर सकती हूँ, इतना ही मैं साथ में ले जा सकती हूँ। एंड फॉर दैट रीजन आई कुडंट गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेट और जेआरएफ भी मैंने कभी दिया ही नहीं। सो December 2019 was my first attempt in NET, and after that, in not December 2018, December was my first attempt, and 2019 June I gave my second attempt, so I cleared that. सेकंड अटेम्प्ट में आपने नेट क्लियर किया, राइट सर। साथ में पीएचडी भी चल रही थी? पीएचडी 2019 मई में ही मेरा वाइवा था। I gave my viva, and after that I gave this exam, and by God's grace I cleared that exam, sir. It was really very hectic. किसकी तैयारी करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? Right sir, but I told you कि दिसंबर में मेरा था preparation, I lost it by some 0.2 marks, I think 2 marks. So फिर मुझे लग रहा था कि मैं इसे continue कर सकती हूँ, क्योंकि काफी चीजें already prepared थी, और ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में इजीली विद जनरल कैटेगरी आई क्लियर्ड माय नेट एग्जाम सर। जब पीएचडी कंप्लीट हुआ तो क्या विजन था आगे का? सर पीएचडी कंप्लीट था, इनफैक्ट पीएचडी कंप्लीट होने के बाद यही था कि ऑब्वियसली पीएचडी की है, इसी फील्ड में की है, तो नेट भी करना जरूरी था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेटिंग फॉर एनी वैकेंसी एक्चुअली, क्योंकि आरपीएससी का थोड़ा बहुत अनसर्टेन रहता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। सो आई हैड दिस इन माय माइंड, बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड्स केप्ट मी टेलिंग दिस थिंग कि वैकेंसी आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस जीके पार्ट, राजस्थान जीके। इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो उसके लिए तैयारी करना थोड़ा सा नया था, क्योंकि इंग्लिश के साथ मैं फैमिलियर थी, पीएचडी थिंग इज ओके, बट जो राजस्थान जीके था
50 अ, नंबर का। वो 50 मार्क्स का था, बट सर सिलेबस बहुत वास्ट था, तो Yes. उसको कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा, तो मैं उसे स्टार्टिंग में ही मैंने उसे कवर करना शुरू किया जब वैकेंसी आई ही नहीं थी। यस, तो जब आपने वैकेंसी आई तो आपने अपनी पढ़ाई और फैमिली को कैसे मैनेज किया? सर एक्चुअली जब वैकेंसी इन 2020 नवंबर में वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टुक परमिशन फ्रॉम माय इन लॉज कि मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना है, एंड आई नीड अ ब्रेक। सो मैंने उनसे परमिशन ली, मैं अपने मदर के यहाँ शिफ्ट हुई, फिर एंड यहाँ पर तो मैं आपको सर क्या बताऊं, माय पेरेंट्स दे हेल्प मी अ लॉट। मतलब मेरी मदर खाना वगैरह घर का काम कोई भी उन्होंने मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की फ्रॉम 8 in the morning till 8 in the evening. वाह, So my sitting was good. I could sit for continuously 10 to 12 hours. So वाह, that was my capacity. So anyhow, क्योंकि सर मेरे लिए वही इशू था, English was not my problem. My problem was with the Rajasthan GK. So anyhow, I had to complete it. I had to complete that GK part. तो आप So सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी में 12 घंटे? yes, yes, sir, yes, sir. कितना दिन चला ऐसे? सर एक्चुअली बीच में कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारा नवंबर से आया तो नवंबर दिसंबर वाज अ कोरोना पीरियड। सो मैंने जनवरी या फरवरी में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, अप्रैल तक ज्वाइन की। उसके बाद ये हमारे एग्जाम्स एक्सटेंड हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक वीकर Yes. सेक्शन इशू, और मे बी कोरोना भी ज्यादा हो गया था। देन अगेन जुलाई में स्टार्ट हुआ था वापस, फिर जुलाई से बीच में मेरा भी ब्रेक हो गया, क्योंकि Okay. जब एग्जाम एक्सटेंड हो जाते हैं तो हम लोगों की एनर्जी भी थोड़ी लो हो जाती है सर, मोटिवेशन कम हो जाता है। मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तो फिर जून Yes. जुलाई में आई अगेन मतलब मैंने अपनी पूरी एनर्जी को वापस रिकलेक्ट किया, एंड देन आई जॉइन लाइब्रेरी। सो उसके बाद सितंबर में एग्जाम था, तो सर बस। आपकी कौन सी रैंक अभी आई है? सर आई गॉट 11th रैंक। वाह, ग्रेट, क्लैप फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। आपने जीके पे इतना फोकस किया तो क्या परफॉर्मेंस रहा जीके का? सर जीके में आई गॉट आई थिंक 32 मार्क्स आउट ऑफ 50। वाह, सो एक्चुअली आई यूजुअली जीके एक ऐसा टॉपिक है, जब लाइब्रेरी में भी मेरे अराउंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सम आरएस एग्जाम और सम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। सो और मेरे जितने भी कजन्स थे वो भी कुछ ऐसा ही राजस्थान जीके की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आई यूज टू डू दिस थिंग कि मैं उनसे पूछती, मैं जब प्रिपेयर करती थी कुछ भी टॉपिक, मैं उनसे पूछती थी कि चलो मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करो, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। एंड व्हेन आई प्रिपेयर द होल जीके पार्ट, फिर तो मैं लोगों के पीछे ही पड़ जाती थी कि आप मुझसे राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछो पूछो पूछो। मैं कहीं शादी में जाती तो अपने कजिन से कहती कि कोई एक क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, किसी टीचर से मिलती तो उनसे कहती राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछ लो। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को भी कहती आप मुझसे कुछ पूछ लीजिए, कोई नया पॉलिटिक्स का इशू या कुछ भी। सो क्या बात। उससे मैं अपने आप को इवेलुएट करती रही कि सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में स्टडी जा रही है। सो मे बी दैट वाज द रीजन। एंड आई यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी जिसमें मैं अपने हर दिन के टॉपिक लिखती थी कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक आज के दिन में, एंड देन उसे मैं 2 या 3 दिन के गैप्स के साथ में उसका रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन रखती सर, एंड देन फिर उसको 2 दिन के गैप्स के बाद में सेकंड रिवीजन, एंड देन थर्ड रिवीजन। सो वो एक डायरी को मैंने थ्रू आउट उसको फॉलो किया, एंड देन इसके साथ मेरा मल्टीपल रिवीजन हो गया। सो एंड actually it is a trick given by many IS scholars, limited resources, multiple revision. Instead of reading one book, instead of reading 10 books, we should read one book 10 times. So यही मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी सर, एंड आई थिंक इसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि there are some 2 or 3 things that we need to follow in order to get success in any competitive exam. We need to be first dedicate, we need to have this dedication, and second sincerity, hard work must be there, and revision. सर रिवीजन तो बहुत जरूरी है।
क्योंकि चीजें अगर रिवाइज, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ, तो फैक्ट्स बेसिस पे उनके ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो और सिलेबस इतना वास्ट होता है, तो मैंने बार बार चीजों को रिवाइज किया सर। तो इसकी वजह से मुझे लगता है मुझे राजस्थान जीके में काफी अच्छा स्कोर मिला सर। इतनी सारी एनर्जी और मोटिवेशन कौन सी चक्की का आटा खा के आया? सर एज आई सेड कि हमेशा से वो एक सपना था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एक्चुअली। सो साइंस की स्टूडेंट थी, आई हैड बोथ मैथ्स एंड साइंस, बायोलॉजी एंड मैथ्स मेरे पास था, सो मतलब एदर आई कुड गेट आईआईटी और मेडिकल, दोनों में से एक, लेकिन मेरा मेडिकल में जाने की इच्छा थी हमेशा से। तो मैं जुनून पहले से ही था। हाँ डॉक्टर बनना चाहती थी, बट वैसी डॉक्टर ना बनकर फिलोसफी की डॉक्टर बन गई। बट मुझे लगा कि एंड मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू डू दिस हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। आप चाहे हर एक की, ईच एंड एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन जर्नी, सो people they have to face their struggle challenges, कैसे भी करके उनको सब फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मैरिड हूँ तो मेरे चैलेंजेस अलग तरह के होंगे, जो अनमैरिड होंगे उनके चैलेंजेस अलग तरह के होंगे, बट द चैलेंजेस आर देयर बिकॉज कोई भी चीज आसानी से इजीली सर मिलती नहीं है, एज वी ऑल नो। सो किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है जो बोल सकता है आज मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट सर, अभी जैसे ये अचीवमेंट मैंने लिया है, बट नाउ आई एम ऑन दिस न्यू जर्नी, सो देयर मस्ट बी सम न्यू चैलेंजेस, कुछ नए चैलेंजेस होंगे, कुछ नए ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, बट मैंने अपने आप को ऐसा बिल्ड कर दिया है कि मैं किसी भी चैलेंज को, मैं उसे हारूंगी नहीं, आई कीप मूविंग। प्रॉब्लम्स के साथ खेलना आपका हॉबी बन गया है। नहीं सर, हॉबी नहीं, जरूरत है एक्चुअली, इन ऑर्डर दिस इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप इवोल्यूशन भी Yes. अगर थियोरी में होता है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते, आपको चलना ही पड़ेगा। सो राइट सर। Very rightly said. I really clap for your नो wonderful सर achievement प्लीज, and inspiration. Okay. थैंक यू सो मच। जब ये एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद काफी टाइम बीच में गैप हो गया इंटरव्यू का, यस सर। so what was going on your mind? सर एक्चुअली एग्जाम ओवर होते ही मैं आई जॉइंड महिला पीजी कॉलेज, जो कि प्राइवेट था। सो आफ्टर दैट दिस विद्या संबल स्कीम केम आउट, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, एंड ये इसमें मैंने फॉर्म फिल किया, एंड दे सिलेक्टेड द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द एपीआई स्कोर, मेरिट की स्कोर के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होता है। सो आई गॉट सिलेक्टेड, और उसका पे स्केल भी अच्छा था, और मुझे कॉलेज एजुकेशन में ये जाने का मौका मिला, मुझे उनका किस तरह का उनका मैनेजमेंट होता है, कैसे उनका प्रोसेस होता है, वो जानने का मौका मिला। सो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनफैक्ट इन माय इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि उन्होंने इसमें भी मुझसे चीजें पूछी। इसका मतलब सर मैं फ्री नहीं थी। आफ्टर क्लियरिंग माय इन दैट इंग्लिश एग्जाम आई वाज बिजी, सो मैं यहाँ से छूटकर दूसरी जगह पे बिजी हो गई, एंड टिल अप्रैल तक मैंने विद्या संबल में हमने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम किया, एंड इन मई में मैंने वापस 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की, बिकॉज द इंटरव्यू रिजल्ट हैज केम आउट, सो दैट हैज कम आउट, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। सो ठीक है, वो प्रोसेस चलता रहा, बट बीच में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, मई जून जुलाई। फिर लास्टली सर जैसे ही इंटरव्यू का ये डेट आई, उससे कुछ दिन पहले मेरी वापस ज्वाइनिंग हो गई विद्या संबल में। सो मैंने थोड़ा सा वहां से ब्रेक लेकर इंटरव्यू दिया, एंड अगेन लकीली इंटरव्यू क्लियर हो गया, एंड देन राइट नाउ आई एम अगेन वर्किंग in college, right sir? Can you share that interview experience? Yes sir, interview experience was really very amazing. I had this fear, as you know sir, I couldn't give my last interview because I was Yes. so nervous. थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। सो एंड आपका बहुत बहुत मेजर रोल रहा मेरे इस इंटरव्यू प्रोसेस में, मुझे ग्रूम करने में, क्योंकि आपने मुझे समझाया
we need to be a very good actor while interviewing, while giving this interview. So, Yes. and the confidence is a key, is a very important thing when we face any kind of interview. So, वहां तक मैं इंटरव्यू में आपके सामने जैसे मैं परफॉर्मेंस मेरा कभी कभार अप्स एंड डाउन्स आते रह रहे थे, लेकिन लास्ट मुझे इतना पता चल गया था, मुझे आंसर आए ना आए, आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट. एंड Yes. वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा उस दिन आ गया सर, यू वोंट बिलीव, वो कूट कूट कर बाहर आ रहा था. क्या बात है. एंड आई ऑल्सो अगेन आई डिड वन थिंग, मैं अपने साथ अपनी सिस्टर को लेकर गई, उसका छोटा बच्चा लेकर गई, अपने बेटे को लेकर गई, एंड दे केप्ट मी सो डिस्ट्रैक्टेड. मतलब क्योंकि मैं अगर ऐसे बैठती तो शायद मेरे माइंड में बहुत कुछ कंफ्यूजन चलता कि क्या होगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे थोड़ा परेशान, इन द सेंस उन्होंने मुझे मेरा पूरा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था. Engaged रखा. हाँ, इंगेज रखा था, राइट सर. सो मैं कुछ इंटरव्यू के बारे में सोच नहीं सकती, मतलब ऐसा कुछ मैंने पहले से कुछ भी मैं पैनिक नहीं हो पाई. एंड माय इंटरव्यू वाज इन सेकंड शिफ्ट 1:30 के अराउंड, एंड आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट. सो मेरा फर्स्ट ही नंबर आ गया था. एंड मुझे पता नहीं सर, अगर वो आज अगर वो सेकंड इंटरव्यू ले लेते तो मैं फिर से नर्वस हो जाती, बट मैं फर्स्ट इंटरव्यू में नर्वस नहीं हुई. सो बहुत स्माइल से, बहुत मुझे ऐसा लगा बहुत लाइवली इंटरव्यू था एंड इंटरेक्शन था. दे आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम जीके पार्ट, and there were questions from my PhD sections, and some questions were from grammar part also. And lastly, they told me to give this demo, and after that they said, okay, your interview is over. So it was around 15 minutes. But मैं बहुत खुश थी अपने इंटरव्यू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बातें ही करके आई हूँ, बातचीत चल रही थी और बातचीत ओवर हो गई कुछ टाइम तक. एंड द पैनल वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने. सो मे बी आई वाज लकी कि मुझे ऐसा ऐसा पैनल मिला था. वेरी नाइस. सो अगर आपको कुछ मैसेज देना है हमारे स्टूडेंट्स को, so what will be that message for a Sir, good preparation? सर मैसेज तो वैसे ही सब स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, एंड आजकल इस मीडिया की एज में हम सब बहुत जानकार होते हैं चीज़ों की, क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी है. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आई यूज्ड टू फॉलो द टॉपर्स स्ट्रेटजी, वो भी आईएएस के टॉपर्स की स्ट्रेटजी. मुझे आज तक सब याद है कि टॉपर्स की कौन सी बुक, मतलब आईएएस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी, इतने मैंने इंटरव्यू देखे थे. इनफैक्ट जब मेरे इंटरव्यू की प्रोसेस भी शुरू होने से पहले मैं सिर्फ आईएएस के इंटरव्यूज देखती थी. हालांकि उनका कोई मतलब कोई बहुत अलग चीज है वो इस इंटरव्यू से, बट आई यूज टू वॉच दोज वीडियोज. दृष्टि आईएएस वगैरह के मैं वीडियोस वॉच करती थी, मैं देखती थी वो किस तरह से आंसर करते हैं. एंड किसी भी जर्नी पे, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो या आप इंटरव्यू देते हो, कुछ भी देते हो, देयर आर सम 3 or 4 थिंग्स. फर्स्ट, यू नीड टू बी, आप जो भी काम करते हो आपका उसमें मन होना चाहिए. लाइक मेरा मन था, मेरा पैशन था, इसलिए मैं इतने सालों तक इस चीज को अपने साथ लेके चलती रही. क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार एज अ हाउसवाइफ, और इतने लंबे टाइम तक, आप 20 साल तक, शादी के बाद 15-20 साल तक आप स्टडी को कंटिन्यू करो, तो थोड़ा मुश्किल होता है. बट ये मेरा डेडिकेशन था, ये मेरा पैशन था फॉर माय स्टडीज, फॉर दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली. सेकंड, ऑब्वियसली हार्ड वर्क चाहिए सर, एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो और नेक्स्ट डे यू बिकम जस्ट, मतलब ठीक है कुछ नहीं, ऐसा नहीं. देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, और उसके साथ आपका सिंसियरिटी. जब आप रेगुलर होते हो, आप कंसिस्टेंट होते हो, दैट मीन्स यू आर सिंसियर. और फिर मुझे जब भी मैं ऐसा करती थी, देयर वर सम डेज कि जब मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाती थी, तो जब मैं नाइट में सोती थी तो मैं देखती थी, ओ मुझे गिल्ट होता था कि आज मैं अपना कुछ मेरा कमी रह गया. तो वो जब गिल्ट आता था, दैट मीन्स आई एम ऑन अ राइट पाथ, आई वाज ऑन अ राइट पाथ. क्योंकि वो गिल्ट आना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सारे डेज बहुत परफेक्ट हो, सब दिन आप सब कुछ अचीव कर लो. कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आप चीजें पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हो, लेकिन वो जब गिल्ट आता है तो दैट मीन्स आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि कुछ कमी रह गई थी, तो आप नेक्स्ट डे थोड़ी और प्रिपरेशन करते हो. एंड रिवीजन सर, रिवीजन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट
part in any competitive exam. So आप ये 3-4 चीजों को रेगुलर फॉलो करो. कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल कुछ नहीं है सर. आप जब स्टार्टिंग में 3-4 दिन बहुत मुश्किल होती है ये रेगुलरिटी मेंटेन करना. इनफैक्ट अगर हम कोई हम अपने आप बॉडी भी बनाते हैं, तो अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हम सब कुछ अचीव कर लेंगे. वी नीड टू बी कंसिस्टेंट. तो वो जो कंसिस्टेंसी, 4 दिन हमें बहुत मुश्किल लगेगा, हाथ पैर दर्द होने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा लाइफ बहुत वो हो गई है, क्या करें, हम तो बंद चुके हैं. लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप वो हैबिचुअल हो चुके हो, आपकी आदत बन चुकी है. तो जब ये चीजें आदत में आ जाती है सर, तो उसके बाद जब वो आदत एक दिन कहीं पे थोड़ा सा कुछ कमी रह जाती है, तो आपको गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है. सो व्हेन आई हैड दिस, आई यूज्ड टू गो लाइब्रेरी. तो जब मैं वहाँ पूरे दिन स्टडी करती थी और कभी कभार मेरा कुछ नहीं होता था, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो ऑटोमेटिकली गिल्ट आने लग जाता था. सो आई एंजॉयड दिस जर्नी. रिजल्ट आ गया इज ओके, बट मुझे ये जर्नी जो थी, इसको मैंने बहुत एंजॉय किया. तो इनफैक्ट डॉक्टर मंजू, जब जब ये वर्ड एंजॉयमेंट आता है, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट? बिकॉज आई कैन सी 2002 से लेके जब से आपने मैट्रिकुलेशन किया अभी तक, ऐसा कभी मुझे दिख नहीं रहा है कि जब आपने बहुत ज्यादा एंजॉय, वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय किया होगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लिए सर एंजॉयमेंट बहुत बड़ी चीजों में नहीं है. इनफैक्ट आज मेरे बेटे का 10th का PF1 का रिजल्ट आया. आई एंजॉयड इट. मुझे वो भी इंजॉय लगा जब, क्योंकि मेरे लिए जैसे रिजल्ट आया, लेकिन मैंने PhD का जब क्लियर किया था, उस टाइम भी मैं एंजॉय हुई थी. मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई. तो खुशी पार्ट्स में होती है. आप ऐसा बल्क में आपको कहीं खुशी नहीं मिलेगी और ऐसा लगेगा ओ गॉड, आज पूरी लाइफ की खुशी मुझे एक दिन में ही अचीव हो गई. ऐसा नहीं है. सो हर दिन की खुशी होती है, हर दिन के मोमेंट्स होते हैं जब हम खुशी फील करते हैं. सो आई थिंक खुशी किसी पर्टिकुलर चीज में ऐसे नहीं है सर. खुशी आपके अंदर ही है. आप चीजों में आपको खुद को देखना होगा कि खुशी किस चीज में आपको मिल रही है. मेरे लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, सो मुझे बस लास्टली सारी खुशियां उस एक दिन में मिल गई. मेरे लिए आगे बहुत सारी खुशियां इंतजार कर रही हैं, और इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी खुशियां थी. छोटे छोटे मोमेंट्स थे. क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, उनके जब रिजल्ट आते हैं, वो भी छोटी छोटी खुशियां होती हैं. इनफैक्ट मेरा बेटा कहता है कि मामा 11th रैंक इज नॉट अ गुड रैंक, यू शुड गेट फर्स्ट रैंक. मुझे फर्स्ट रैंक मिलती है. सो ये बात सुनती हूँ तो भी मुझे खुशी हुई सर, कि एटलीस्ट चलो आप मुझे मतलब, हालांकि वो मजाक था. और राइट सर, ये तो खुशियां बहुत मोमेंट्री होती हैं, लेकिन पीस होना जरूरी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है. ऐसा कभी मोमेंट आया लाइफ में जब लगा कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, डिस्करेज हो गए? सर हकीकत बताऊं, मैं देयर वाज अ पीरियड, छोटा सा था, जब मैं थोड़ी डिप्रेशन में भी आ गई थी. तो हालांकि कभी कभार ऐसी चीज, क्योंकि मैंने समझा है कि अगर धूप को महसूस करते हो, तो छाया जो होती है उसका आनंद आप ज्यादा अच्छे से ले सकते हो. जब आप बहुत प्यासे होते हो, तो आपको पानी की जो मिठास होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है. मतलब पानी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है. कीमत पता चलती है कि हाँ पानी क्या है. तो जब मैं डिप्रेशन में थी, तो उस टाइम मुझे पता चला, बाद में जब थोड़ा सा मैं ठीक हो गई, तो उसके बाद मुझे पता चला लाइफ मतलब आप ऐसे नहीं, आप लाइफ को आपको लाइफ को जीना होगा. आपको लाइफ में जस्ट आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो. आप सिर्फ लाइफ इसलिए नहीं जी रहे हो कि आप ब्रीथ कर रहे हो, और आप लाइफ को जीना और लाइफ में एग्जिस्ट करना अलग चीज है. सो आपको हर पल जीना होगा, हर मोमेंट को जीना होगा. और उसके साथ जब आप चलते रहते हो, तो ऐसा लगता है लाइफ में हम अगर मूवमेंट करते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम लाइफ जी रहे हैं सर. सो मूवमेंट मस्ट बी देयर. एक जगह स्टिक नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है. वेदर यू फेस प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और खुशियां. इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट आया था, 2 दिन तक मैं बहुत ऐसा लग रहा था सर मैं हवा में उड़ रही हूँ. फिर मुझे 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 अजीब सा लगा, मुझे लगा मुझे जमीन पे आ जाना चाहिए. आई वांटेड टू बी अ नॉर्मल. मुझे थोड़ा नॉर्मल फील करना है, बिकॉज ठीक है लोगों के परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं, बट थोड़े टाइम बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है सर. तो वो नॉर्मल भी अच्छा लगता है, खुशियां भी टाइम टू टाइम आए तो अच्छी लगती हैं. लाइक अ स्वीट्स सर, स्वीट कभी कभार ही अच्छी लगती है. थ्रू आउट आप अपने लाइफ में स्वीट नहीं खा सकते. नहीं खा सकते. राइट. सो Okay, so can you share that moment when you received your result?
Okay, so actually, so it was on 26th, and we all knew that after 25th was the last session, so we will get our result on 26th. So we were all waiting for our result, and we had this group जिसमें सब लोग कोई जप कर रहा था, कोई शांति शांति कर रहा था. So and I was talking to my friend Ranjana जी से भी मैं बात कर रही थी कि क्या है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. So that time period was very troublesome, I would say. और सडनली रिजल्ट आया सर. सो जब रिजल्ट आया, वो पीडीएफ आया, तो फर्स्ट आई सी कि वो मेंस की लिस्ट है या रिजर्व लिस्ट है. पहले मैं ये चेक करती हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से मेंस की लिस्ट देखा. आई न्यू माई रोल नंबर, मैंने रोल नंबर चेक किया. मैं नीचे आई और मैं खूब तेज मैंने शोर मचा के पापा को, अपनी सिस्टर को बुलाया, रिजल्ट आ गया है. तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, कुछ तो हुआ है, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव. कुछ तो शायद ये मेरा नंबर ही है, रोल नंबर है. सो के रोल नंबर हो गया. इनफैक्ट जब मैंने ओबीसी की कट ऑफ देखी तो आई वॉज श्योर इनफ कि हाँ सिलेक्शन तो हो गया है, क्योंकि ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ वॉज वेरी लो. सो लेकिन सर वो सबकी सभी तरफ से कॉल आने लग गए, सब था. लेकिन अचानक कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा एक बार रोल नंबर चेक करती हूँ. एंड जब मैंने ये बात कही कि आई अगेन नीड टू चेक माय रोल नंबर, सो माय फादर ही स्टार्टेड अनफोल्डिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को खोलकर बैठ गए. सो आई सेड कि आप ये क्या कर रहे हो, माय रोल नंबर इज नॉट हियर, यहाँ पे इसके अंदर मेरा रोल नंबर नहीं है, इट शुड बी इन माय एडमिट कार्ड. तो मैंने एडमिट कार्ड में से वापस चेक किया. हाँ, सो राइट, एग्जैक्टली एक साथ बिलीव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर वाकई में हम ही हैं. ओके, आई हैड दिस इंट्यूशन कि मुझे, आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे मिलेगा, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा. बट टू गेट 11th रैंक, दैट वाज a little bit very much surprising for me, sir. Right. Very nice. इस जर्नी में, पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, जैसे मदरहुड का सेक्रीफाइस, बहुत सारे वर्ल्डली प्लेजर के सेक्रीफाइस. वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको लगता है कि एक सेक्रीफाइस है? So sacrifices, I believe कि without without sacrificing anything, we can't achieve anything which we want, which we always wanted to get. So I believe कि जब हम चीजें अचीव कर लेते हैं ना, तो हम सेक्रीफाइस सडनली हम भूल जाते हैं. हमें नहीं याद रहता कि वो सेक्रीफाइसेस थे. या क्योंकि हार्डवर्क के बाद जब कुछ अचीव होता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है. और मैं उनको सेक्रीफाइस एज सच तो नहीं कहूंगी सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं. आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजी लाइफ में बिस्तर पे बैठकर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे और आप सब कुछ. इनफैक्ट मेरे से ज्यादा सेक्रीफाइसेस मेरे फैमिली मेंबर्स ने किया था, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी इस जर्नी पे थी और वो मुझे अचीव करना था. बट मेरे बच्चों ने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया कि मम्मा आप प्रिपरेशन करो. मेरे इन लॉज ने मुझे वक्त दिया. मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. सो दे मेड दीज सेक्रीफाइसेस, आई शुड से. मेरा सेक्रीफाइस तो बहुत कम था, उनके ज्यादा थे. तो लेकिन जब मैंने उनको वापस जब ये सारे पेड ऑफ हो गया सब कुछ सर अब. Great, super, super. I would like to ask you to acknowledge all those persons who have made a lot of contributions in that job. Yes, sir. There are many, sir. I would like to first give thanks to God, to Almighty, and then मेरे parents, मेरे family members, मेरी sister, मेरे बच्चे, my husband, my children, they all played a very important role. In fact, अभी भी मुझे मेरे life में उनका role हमेशा से बहुत important रहा है. मेरे गुरुजन, मेरे सुपरवाइजर पीएचडी के, एंड थ्रू आउट मुझे ऐसा लगता है इस जर्नी में जिन्होंने भी मुझे जहाँ जैसे भी गाइड किया और वो मैंने एक्सेप्ट की उनकी गाइडेंस, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हो गया. एंड लास्टली फॉर इंटरव्यू, योर रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट यू स्टिल कीप मोटिवेटिंग मी. सो आपने जिस तरह से इंटरव्यू में मुझे गाइड किया, इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक चीजों को देखना, जैसे मैं अगर इंटरव्यू किसी की देख रही थी और एक खुद को देना, खुद इंटरव्यू देना बहुत अलग चीज है सर.
आज मुझे पता चल रहा है, मैं जब दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ती थी, देखती थी, और आज खुद दे रही हूँ, तो मैं खुद बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही हूँ। तो इसीलिए आपने मुझे खुद उस चीजों को फेस करने के लिए तैयार किया। सो आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू यू सर। एंड और सभी मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे गुरुजन हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी एक एक सबकी एक साथ की जर्नी होती है, मेरे अकेले का कुछ नहीं था। बिकॉज वी आर अ सोशल पीपल। हम इस यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पर हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, और ये इंटरकनेक्शन ही हमें आगे और सक्सेसफुल बनाता है, हमें हमारा डेवलपमेंट होता है उसी के थ्रू सर। So I believe each and every person has played a very important role throughout this my journey. It's wonderful, really wonderful. One more clap for you. No, sir, And, please do. Thank you. I Thank you. I would ask some of my students to share your curiosity. If anyone want to talk to Dr. Manju, you can raise your hand. Okay. Hello, Dr. Manju. This is Narendra. Hello, Narendra. I think I'm audible enough. Actually, I'm also from Rajasthan, and You're from Rajasthan. Once I appeared in this exam, and I couldn't qualify. That was one thing. So I just wanted to. I was just wondering what were the questions related to your PhD, and what were the questions related to the subjects that you did ask? You wanted to इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन थे जो आपके पीएचडी से थे, और वो क्या क्वेश्चन थे जो सब्जेक्ट से? So they generally ask, see, my PhD topic is a Sufism topic, right, sir? So I made this comparative study of Rumi, Hafiz, and Tagore. So first they just asked me about my topic, and then they asked me about some philosophy of Tagore, and they asked me some questions related to my literature review. So what are those books that I read during my research? And they again there were some questions. They also asked me the basic idea, the main philosophy behind the Sufism. So these were some questions. And from English they asked me some theory questions, because I gave my demo on literary theory. So and then they again asked me this deconstruction, the theory, deconstructionist theory, the theory of deconstruction, what do you say, post-structuralism theory. They asked me question from that part, and some questions were from grammar part. So yeah, these were the questions. हमने मॉक इंटरव्यू में पीएचडी क्वेश्चंस की तैयारी की थी, उससे कितने क्वेश्चन मैच कर रहे थे? यस सर, आपने मुझे तैयार करवाए थे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो सारे क्वेश्चंस अराउंड पीएचडी के ही, मतलब जो आपने क्वेश्चंस कराए थे उसमें मेरी पीएचडी का पूरा पार्ट तैयार हो गया था, मोरलेस सारा पार्ट तैयार हो गया था। तो टैगोर पे थोड़ा उन्होंने ज्यादा फोर्स किया, मतलब ज्यादा एम्फसाइज किया था। एंड देन दे यस दैट एक क्वेश्चन उनका और था कि जो इंडियन लिटरेचर का पुराना जो लिटरेचर है और अभी का न्यू लिटरेचर है, उसमें आपने क्या क्या फर्क देखते हो? सो दैट वाज अ रैंडम क्वेश्चन again. Yes, and some of the questions were from GK part. They asked me from home district, जोधपुर में क्या क्या चीजें हैं। सो जो हमने डेमो क्लास का प्रिपरेशन किया था मॉक इंटरव्यू सेशंस में, यस सर, उससे क्या क्या क्वेश्चन मैच कर रहे थे? सर उनसे उन्होंने क्वेश्चन तो डेमो से ज्यादा नहीं पूछे। मैंने लिटरेरी थियरी पढ़ाया, मैंने उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, देन आई रोट सम अदर थिंग, उसका दिया, देन दे सेड ओके योर इंटरव्यू इज ओवर। सो they were looking very satisfied with your demo class. Yes, actually they were just seeing the how you can teach, and how's your confidence Methodology. level. Yeah, Methodology of teaching. technology, all methodology. So वो specific sir कुछ ऐसा आपका knowledge base कुछ नहीं देखते कि आपको ये question. In fact, sometimes आई बिलीव कि मतलब उनको मेरे आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो सिर्फ चेक कर रहे थे कि मैं अपने आंसर्स कैसे कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे आंसर कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा क्वेश्चन डाल देते थे। तो पर्सनालिटी चेक, इट वाज हाँ, पर्सनालिटी चेकिंग, राइट।
Okay, any other scholar? Okay, Anamita. Anna. Congratulations, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I wanted to ask you something. Yes. If you couldn't answer, how how was your reaction to that? I mean, if you didn't know the answer, what would you tell them? My answer was like an actor. A sir prepared me for that कि with smiling face आप smile करते हुए answer करो कि and actually direct ऐसा कोई question नहीं था कि जो मुझे नहीं आया. Question के अंदर से questions के अंदर से कोई question आया था जो मैं I was not able to answer, and that I with a full smile on my face I said, okay, sorry ma'am, I'm not able to right now recall this answer. So these are some 2-3 phrases हैं जो मैं use करने होते हैं. So sentences I would say. बस वो but ऐसा इतना वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आपको आंसर नहीं आता. That's perfectly okay. But you keep smiling बस. आप खुश रहो. आप आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप ऐसे मतलब खुशी से आंसर करो कि मतलब ना कहो कि उनको लगे कोई बात नहीं. It's okay. So sir told me Thank you, this. ma'am. सर गाइडेड में दिस कि आप बस मुस्कुराते रहना, और मुझे लगा सारी मुस्कुराहट सर उसी दिन इंटरव्यू में ही निकली थी मेरी. आपने जितने मौके इंटरव्यूज में लिए तो मैं थोड़ी नर्वस रहती थी, लेकिन लास्टली मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं कहती हूँ अगर कोई सेकंड इंटरव्यू हो जाता तो मे बी आई वुड हैव फेल्ड. लेकिन वो फर्स्ट इंटरव्यू में सारी मुस्कुराहट, सारा कॉन्फिडेंस उसी में ही निकल गया सर. So that was very lively interaction. That's why I'm saying कि वो इंटरव्यू जैसा मुझे फील ही नहीं हुआ. ऐसा लगा मैं टीचर्स के साथ बातचीत करके आ रही हूँ. Okay, so I'll close the session, Dr. Manju, and by congratulating you once again. Thank you so And much, sir. Thank you so much. I wish you touch all the glories of your life. Okay, with all sir. the Thank you success so of much. your life. Thank you so much, sir. Thank you.